MCA updates that are related to 9th April 2021 are actually the Insolvency and Bankruptcy Pre-Packaged Insolvency Resolution Process Rules 2021, and the central government has decided the minimum amount of default. To know what all is in the notification, do watch the video till the end. Welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. If you're new to my channel, I make educational and informative videos for CA, CS and CMA students as well as members. Do subscribe to my channel if you've not done it yet, and follow me on other platforms as well. And to know whenever I post the video, do hit the bell button so that whenever I post the video, you get notified. So the first notification that came on, the date is 9th April 2021. The notification is regarding the amount that is being fixed by the central government. Now, if you've not seen the video on Insolvency and Bankruptcy Code, there was a section which was amended, and central government was being empowered to decide the minimum amount of default. कि अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो उस केस में उन्होंने बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि मिनिमम अमाउंट क्या है. मैक्सिमम उन्होंने बता दिया था कि 1 करोड़ से ऊपर नहीं होगा. तो अभी मिनिमम अमाउंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करके बोल दिया 10 lakhs. सो इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट for the matters that are relating to the pre-packaged insolvency resolution process of corporate debtor, जो कि chapter 3A में है. maximum amount उस section में already specified थी, that is 1 करोड़. 1 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता. minimum amount उन्होंने बोल दी है 10 lakhs. 10 lakhs is the minimum amount to maximum of 1 crore. Then comes the Insolvency and Bankruptcy Pre-Packaged Insolvency Resolution Process Rules 2021. So these are the rules that will be related to pre-packaged insolvency resolution process. Let's get started. Starting with the rules, as it starts with the notification that came up on 9th April 2021. The name of the rules, as I told you, Insolvency and Bankruptcy Pre-Packaged Insolvency Resolution Process Rules 2021. The date of enforcement is the date of their publication in the official gazette, and they are being published on 9th April only. So these are enforced with effect from 9th April 2021. सबसे पहले एप्लीकेशन के ये रूल्स किन पे अप्लाई होंगे, तो रूल्स अप्लाई होंगे प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पे. अगर आपको नहीं पता तो मैंने ये एक्सप्लेन किया है इन सिंपल वर्ड्स इन अ वीडियो दैट आई विल बी लिंकिंग ऑन द आई बटन अबव और द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. डेफिनेशंस हैं. डेफिनेशंस में अगर कहीं पे कोड आता है उसका मतलब है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. डू नोट इट. प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस वो रेजोल्यूशन प्रोसेस है जो चैप्टर 3A ऑफ पार्ट 2 ऑफ द कोड में दिया है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जो एक्ट से आपको इजीली समझ में आ जाएगा. फॉर्म का मतलब है फॉर्म अपेंडेड टू दीज रूल्स. सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल सी एक फॉर्म जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो उस फॉर्म के बारे में बात होगी जहां जहां पे वर्ड फॉर्म आएगा. आइडेंटिफिकेशन नंबर का मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर एज द केस मे बी ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन. जो अगर LLP है तो LLP आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर कंपनी है तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर. जो जिस भी तरीके का कॉर्पोरेट पर्सन है उसका जो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसे बोला, वो उसको रेफर कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर. Then unless the context otherwise requires, words and expressions used and not defined therein shall have the same meaning respectively assigned to them in the code. तो जो भी कोड में मीनिंग ऑलरेडी गिवन है उसका मतलब वही है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा. नंबर 4 डील्स अबाउट फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन. सो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जो है वो जो एप्लीकेशन है वो फाइल करेगा फॉर इनिशिएटिंग द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, जो सेक्शन 54C ऑफ द कोड इन फॉर्म 1. फॉर्म 1 अभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो एप्लीकेशन फाइल करेगा. 54C में सब कुछ गिवन है अलॉन्ग विद द एफिडेविट. तो उसे एफिडेविट देना है, उसे डॉक्यूमेंट्स देने हैं या रिकॉर्ड्स एज रेफर्ड इन एनेक्शर्स देन. सो फॉर्म के साथ एनेक्शर्स हैं जिनमें बताया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. सो अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ही हैज़ टू गिव द एफिडेविट एंड ही हैज़ टू गिव ऑल द रिकॉर्ड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द एनेक्शर्स, और उसके साथ फीस. अच्छा, ये और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाएंगी, फिजिकल फॉर्म में नहीं जाएंगी.
अलॉन्ग फीस जो है वो मेंशन्ड है ₹15,000। तो 15,000 की फीस पे करनी पड़ेगी while initiating the application for pre-packaged insolvency resolution process under section 54C ऑफ द कोड इन फॉर्म 1। उसके साथ एफिडेविट लगेगा, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो लगेंगे, एंड उसके साथ जो है एनेक्शर्स में जो रिकॉर्ड्स चाहिए वो लगेंगे। अब क्योंकि बताया प्रोवाइडेड दैट इन दिस केस इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर फाइलिंग सच एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन एंड द अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स मे बी फाइल्ड इन फिजिकल फॉर्म। अगर इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी नहीं है तो फिर आप फिजिकल फॉर्म में फाइल कर सकते हो, जस्ट इन केस प्रोवाइडेड कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी आपको अवेलेबल, तो आप फिजिकल फॉर्म में कर दो, बिकॉज ऑब्वियसली कोई और ऑप्शन नहीं है। देन अलॉन्ग साइड दैट, अब क्योंकि आप फिजिकल फॉर्म में कर रहे हो तो जो अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो बल्कि हैं, वेयर एवर बहुत ज़्यादा आप जो अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बल्कि हैं, तो इट इज़ फेवरेबल और इट इज़ टोल्ड कि आप उन्हें स्कैन करके you have to submit it in scanned portable document format in the data storage device जैसे कि CD में या USB flash drive में, which is acceptable to the adjudicating authority। तो instead कि आप इतने बल्कि documents उनको दो, first of all तो वो electronic form में है, just in case provided अगर electronic form में नहीं है आपको physical form में देना पड़ रहा है, तो application तो आप दोगे ही, लेकिन उसके साथ जो documents हैं वो बल्कि हैं, तो it's always preferable कि आप उन्हें compact करके CD में कर दो या USB में कर दो, जो भी acceptable है to the adjudicating authority। Moving further, the corporate applicant shall serve a copy of the application to the board by registered post or speed post or by hand or by electronic means before filing it with the adjudicating authority। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन की एक कॉपी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट को, इससे पहले कि आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तक पहुंच जाओ, उससे पहले बोर्ड के सामने रखनी ज़रूरी है, या बोर्ड को सर्व करनी ज़रूरी है। अब कैसे सर्व हो सकती है, भले आप पोस्ट कर दो, स्पीड पोस्ट कर दो, या बाय हैंड उन्हें दे दो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू उन तक पहुंचा दो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिफोर द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मूव्स टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ही शैल सर्व अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू द बोर्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और बाय हैंड और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। Then the application shall be filed before the adjudicating authority in accordance with rules 20, 21, 22, 23, 24 and 26 of NCLT rules 2016। तो कुछ rules हैं NCLT के 2016 के, जिसके हिसाब से ही एप्लीकेशन जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। A corporate applicant shall inform the adjudicating authority before about the filing of any winding up petition against the corporate debtor after becoming aware about such फाइलिंग। तो ये ड्यूटी है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की कि वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताए अगर वो कोई वाइंडिंग अप पिटिशन लगा रहा है अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर आफ्टर बिकमिंग अवेयर अबाउट सच फाइलिंग, कि ऐसा कुछ फाइल हो रहा है, तो आप उसकी ड्यूटी है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताना। बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड रूल्स नहीं हैं, आई थिंक दे आर वेरी टू द पॉइंट, एंड दिस इज़ द फॉर्म दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो डेफिनेशंस में भी बोला है कि जहाँ पे भी फॉर्म वर्ड आएगा तो ये फॉर्म है, फॉर्म 1। ये वो फॉर्म है जिसके साथ एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स और जो रिकॉर्ड्स एनेक्शर्स में गिवन है वो भरने पड़ेंगे आपको। सो द नेम ऑफ द फॉर्म इज एप्लीकेशन बाय, बेसिकली it's a kind of application by corporate applicant to initiate pre-packaged insolvency resolution process under chapter 3A of the code under section 54C of the IBC 2016 read with rule 4 of the insolvency and bankruptcy rules 2021। तो ये है name of the form, and इसमें 4 parts हैं। I'll be telling you कि हर part में क्या क्या आपको fill करना है। Starting with part 1, you have to tell the particulars of the corporate applicant and corporate debtor। So simple है कि name, address, email address, identification number and address for communication of the corporate applicant, and name, address, email address, identification number and address of the registered office of corporate debtor। तो उसकी सारी details देनी है। यहाँ पे जो word identification number आया है, वो जो पहले बताया था rules में identification number आएगा, तो as per the corporate personality या तो LLP identification number है या फिर SIN है, right, in case of a company।
कॉर्पोरेट डेटर और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन देने के बाद सारे डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स जो हैं कॉर्पोरेट डेटर की, जहाँ जहाँ पे एप्लीकेबल है उनकी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, नॉमिनल शेयर कैपिटल कितना है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, एंड और डिटेल्स ऑफ गारंटी क्लॉज एज पर द एमओए। जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ें एप्लीकेबल है आपको इस फॉर्म में भरनी है। Name, address, and authority of the person submitting the application on behalf of the corporate applicant. ये सारी चीज़ें जब क्लैरिटी हो जाती है तो इट्स मोर इजी। तो ये फॉर्म जो है फॉर्म 1 बोलते हैं इसको, तो ये फॉर्म 1 से ये सारी चीज़ें भर के आपको एज एन एप्लीकेशन पेश करनी है बिफोर द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। मूविंग फर्दर आपको बताना है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑथोराइज टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट इनक्लोज। और इस सब की जो ऑथराइजेशन है वो भी आपको साथ में एनेक्स करनी है, इंपॉर्टेंट है। एनेक्शर्स नीचे दिए हैं, बहुत सारे इनफैक्ट एनेक्शर्स हैं जो आपको देने पड़ेंगे। वो जब आप फॉर्म देखोगे सो यू विल गेट टू नो डिटेल्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर सेक्शन 54A के हिसाब से, लाइक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर या इन्वेस्टमेंट इन plant and machinery or equipment, and turnover calculated as per the notification numbers are given for the MSMEs, क्योंकि ये है ही MSME के लिए ये जो process है। Documentation to show that the corporate applicant is authorized to initiate the pre-packaged insolvency resolution process, उसकी सारी documentation होनी चाहिए। Then comes part 2, that is particulars of proposed resolution professional। तो एक resolution professional अपॉइंट करना important है, उससे रिलेटेड उसका नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर देना important है, and names of the creditors who have approved his appointment and the percentage with which he is being approved, his appointment is being approved। तो section 54A में बहुत clearly mentioned है कि 60% of the value of their debt जो है, value of their debt, I have explained it in the ordinance as well, उससे not less than 60% of the value of their debt जो है creditors ने ओ किया है वो approve करेंगे। इसका मतलब 60% of the value से ज़्यादा अगर उसे अप्रूवल मिलता है तो वो अपॉइंट होगा, तो उसके लिए वो ये सारी चीज़ें मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। Then comes part 3, which is regarding particulars of financial or operational debt creditor wise as applicable। So इसमें name of the financial या operational creditor, address of correspondence of the financial or operational creditor, total debt raised and amount and default अगर ऐसा कुछ है तो, date when financial or operational debt was incurred। Then comes particulars of security held, if any, the date of its creation, its estimated value as per the creditor. You have to attach a copy of the certificate of registration of charge issued by the registrar of companies if the corporate debtor is a company। तो ये सारी चीज़ें करनी important है कि security के particulars क्या हैं अगर कोई है at the date of creation। Details of retention of title arrangements, अगर कोई ऐसी title arrangements retain की हैं उन्होंने, if any, in respect of goods to which operational debt refers, तो उसकी details provide करना important है। Record of default with the information utility, list of documents attached to this application in order to prove the existence of financial or operational debt and the amount and default से related अगर कोई documents आपने attach किए हैं तो उसकी list provide कर दो। Then comes part 4, which is particulars of financial creditors not being related parties of the corporate debtor। ये सबसे important चीज़ है that they should not be related parties of the corporate debtor। तो उनके name, total debt due to financial creditors, names of the creditors जिन्होंने approve किया है filing of the application, उनके name and उनका percent as per the percentage of debt incurred। तो basically सारी चीज़ें जो ordinance में given है, ordinance में mentioned है, उससे related उसे सारा कुछ क्लब करके एक अच्छा सा फॉर्म बना दिया जिसमें आपको fill करना है to initiate the pre-packaged insolvency process। At the end, signature लगेंगे, person authorized on behalf of the corporate applicant, name, position with or in relation to the corporate applicant and address of the person signing। अभी शुरू में ही मैंने बताया आपको कि alongside the application आपको एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स देने हैं जो भी एनेक्शंस में मेंशन है। तो ये वो एफिडेविट है जो भर के आपको देना पड़ेगा, ये भी फॉर्म के साथ प्रोवाइडेड है, जस्ट लाइक अ डिक्लेरेशन है। तो ये जो है एफिडेविट ये आपको देना पड़ेगा विद द एप्लीकेशन। एंड देन कम्स द
वेरिफिकेशन, जो डेपोनेंट वेरीफाई करेगा, ये उससे रिलेटेड है। इसके बाद एनेक्शर्स भी हैं जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड हैं। आई हैव नॉट पुट द स्क्रीनशॉट्स, यू कैन जस्ट गो एंड चेक देम बिकॉज उसमें बहुत बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सो वाइल फाइलिंग यू विल गेट टू नो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें साथ में एनेक्स करने हैं। अदर देन दैट यही थे वो रूल्स विच विल बी प्ले एन important part while studying the ordinance or while filing the pre-packaged insolvency resolution process for MSMEs। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब भी करना और बेल बटन प्रेस कर देना so that whenever I post any video you get notified। Bye।